Hello students and welcome to geography classes. As you know that students, we have completed two chapters in the geography and the explanation of the chapter number 3. The exercises remain of the chapter number 3. You will get by tomorrow through the PDF and all of you complete your copy work. Students, today I am going to start a new chapter and this chapter is your about the agriculture. Now students, today we are going to understand about the agriculture. So now first we are going to understand about the definition of the agriculture. Agriculture is the practice of cultivating plants and remaining animals to provide food and other products to sustain life. The history of agriculture dates back thousands of years. So first students, we are going to understand about the definition of the agriculture. Students, according to your book, the definition of the agriculture is about the cultivation of the plants and the rearing of the animals. Students, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो इसमें दोनों चीजें आती हैं. हमारा कल्टीवेशन भी आता है और हमारा प्लांट्स रियरिंग भी आता है. अब जैसे आपने देखा होगा बच्चों, गांव में हम लोग तमाम प्रकार के फसलों को उगाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, फिर दाल हो गई, अनेक प्रकार के हम लोग फसलों का उगाते हैं अपने खेतों में. तो ये भी एक पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर का. साथ में आपने देखा होगा लोग अपने घर पे पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई. तो ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर. Means we can say that the agriculture is the combination of rearing of the animals and the cultivation of the plants. Now next part of this paragraph that is telling us about that the agriculture word is not new for us because when we are back thousands of years like 12,000 and 15,000, अगर हम 12,000 साल पहले या 15,000 साल पहले पीछे जाके देखें तो भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग एग्रीकल्चर करते थे. एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. एक्चुअली बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले जो पीपल्स होते थे वो होते थे नोमैडिक पीपल्स. ठीक है, नोमैडिक मीन्स वो एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे. किसकी तलाश में? अपने भोजन की तलाश में, घर की तलाश में. वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पर प्लेस करते थे. मीन्स द नोमैडिक पीपल्स आर वर पीपल दोज आर ऑलवेज सर्चिंग इन अ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस. आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू सेटल डाउन इन अ पर्टिकुलर प्लेसेस. उसके बाद से वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल डाउन होना शुरू हुए, जहां पे उन्होंने अपने मकान बनाना शुरू किया और खेती का काम करना शुरू किया. इसलिए खेती जो शब्द है, जो एग्रीकल्चर वर्ड है, वो हमारे लिए नया नहीं है. अगर हम लोग पूरे नेक्स्ट पैराग्राफ, टुडे agriculture continue to be the major occupation with the more 40% of the world's population directly dependent on it their livelihoods. Okay, so in this introduction part of this chapter, now you see that the paragraph that is telling us about that if we are going to calculate how much population of the world is engaged in agriculture, so more than 40% people depends on the agriculture. हमारे यहाँ या पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं कि लगभग 40% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब उनका जीवन यापन का काम एग्रीकल्चर से चलता है. और अगर हम लोग पर्टिकुलर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोर देन 70% पीपल्स आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर टाइप ऑफ वर्क. और हमारे यहां लगभग 70% पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन का काम चलता है. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड about the factors influencing the agriculture. Now what are the factors that influence the agriculture? There are several factors that influence the agriculture. These factors decide what crops can be grown in a region, how high the yield will be, and the system of the farming that can be adopted in a region. Some of the factors are listed here. Okay. Now the next point that we are going to understand
इज द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो फैक्टर्स हमको ना मिले तो हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें, द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इज दैट द सॉइल। The soil of a region determines the types of crops grown there. While some crops like rice and the cotton grow well in clayey soil, and other types of crops like wheat and well-drained soil. Okay. तो now what is the importance of the soil in agriculture? जैसे बेटा आप लोगों को पता है कि किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पता है आपको कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है वो सॉइल की मदद से बनाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड आफ्टर दैट द प्लांट टेक दिस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक देयर ओन फूड। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की क्रॉप्स के लिए किस तरीके की मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जिनमें पानी बहुत जल्दी से सूख जाता है, कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जिसमें पानी बहुत दिन के बाद सूखता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की क्रॉप्स को कैसा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए या पानी कम चाहिए, तो उस तरीके की क्रॉप उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पे उगना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्लाइमेट। Now the climate is another important factor that affecting the soil. Now in the climate we are going to understand about the temperature of a place, the weather condition of a place. All the things are comes under the climate. Climate में जो हम लोग चीजें बेटा समझने जा रहे हैं उसमें कितना वहां पे गर्मी पड़ती है, कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी बारिश होती है, वहां पे बारिश नहीं होती है, तो ये भी बहुत असर करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो अभी आप समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं एप्पल का, अगर हम लोग अपने गोरखपुर में एप्पल का पेड़ ले आके लगाएं और हमें लगे कि एप्पल हमारे यहां उगेगा और फल भी देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द प्लांट ऑफ एप्पल इज नॉट सुटेबल इन गोरखपुर। The apple is only grows in the Kashmir region or the Himachal region, क्योंकि बेटा एप्पल को ग्रो करने के लिए वहां पे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए और वो हमारे यहाँ टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम इन क्लाइमेटिक कंडीशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप और अच्छे से समझ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट एंड राइस। अब हम दो फसलों का लेते हैं, क्रॉप का लेते हैं, एक व्हीट का लेते हैं और एक राइस का लेते हैं। अब समझो बेटा, व्हीट जो होती है, गेहूं की खेती जो होती है, वो नवंबर मंथ से स्टार्ट होती है। नवंबर में उसके बीज बो दिए जाते हैं और वो अप्रैल मंथ तक जाके तैयार हो जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। वहीं पे अगर हम लोग चावल की खेती की बात करें, धान की खेती की बात करें, तो वो जो बोई जाती है वो जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई में स्टार्ट कर दी जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो नवंबर फर्स्ट वीक में आते आते उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब दोनों के क्लाइमेट में देखो, गेहूं सर्दियों के मौसम में हो रहा है, वहीं पर धान जो है वो गर्मियों के मौसम में हो रहा है, जब गर्मी और बरसात दोनों मिल रही, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ढेर सारी गर्मी की जरूरत पड़ती है और बहुत ढेर सारे पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाके धान की खेती हमारी अच्छी होती है। गेहूं के लिए हमें कम पानी की जरूरत पड़ती है और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए गेहूं जो होता है वो हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में होता है। अगर हम गेहूं को गर्मियों में बो दें और धान को ठंडियों में बो दें, तो इट इज पॉसिबल टू ग्रो इन आवर फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर crops. Now next we are talking about the nature of terrain. What is the nature of terrain? So actually the terrain means the land. What type of land is present on that particular area? terrain में बेटा mountains भी आ जाते हैं, desert region भी आ जाता है, plain region भी आ जाता है। तो ये terrain होता है। terrain का मतलब होता है धरती, जिस तरह की हम लोग जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे बेटा, जैसे चाय पत्ती, जस्ट वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ टी।
अगर हम टी का एग्जांपल ले तो आप देखेंगे टी की खेती जो होती है, टी प्लांटेशन जो होता है, वो ज्यादातर मोस्टली द टी प्लांटेशन आर डन इन द हिली रीजन बिकॉज द स्लोप्स आर प्रेजेंट, बिकॉज टी के प्लांट होते हैं उनमें पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी लगना शुरू हो गया तो वो टी के प्लांट्स नहीं होंगे, उनको बहुत मॉडरेट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। लेकिन अब अगर उसको हम लोग अपने यहां लाके बो दे टी को, तो वो हमारे यहां नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो वैसी टेरेन हम दे पाएंगे, स्लोपी टेरेन नहीं दे पाएंगे। स्लोप का मतलब ऐसी टेरेन हम नहीं दे पाएंगे, मतलब पानी गिरा और तुरंत वहां से ड्रेन हो गया। और हम लोगों के यहां जो सरफेस है टेरेन वो प्लेन है, अगर पानी गिरता है तो वहां पे कुछ दिनों तक कलेक्ट होता है, तो इसलिए ये टेरेन का होना बहुत जरूरी। और उसी तरह अगर हम लोग गेहूं, वीट और राइस की खेती पहाड़ों पे करें तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज द टेरेन, द पर्टिकुलर टेरेन इज द रिक्वायर फॉर द ग्रोइंग फॉर द वीट एंड द राइस इज नॉट प्रेजेंट इन द माउंटेन और हिली रीजन। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ टेरेन. Next, the distance from the market. That is also the very important point. Farms producing perishable crops like the vegetable and those rearing cattle for the dairy industry are usually located near the cities and towns, as these products need to be consumed within a few days. Farms producing non-perishable crops like grains and millets need not be located close to their market. Okay students, now we are going to understand this paragraph, and this paragraph is the distance from the market. Distance from the market means कि हमारी मार्केट से दूरी कितनी है। अब जैसे इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पेरिसेबल आइटम्स। पेरिसेबल आइटम्स बेटा उन्हें हम कहते हैं जो बहुत दिनों तक, जिनको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, मतलब 1 से 2 दिन। जैसे अगर सपोज दैट अगर हमने फ्लावर्स की खेती की, फ्लावर्स की खेती की, और हमने ढेर सारे फ्लावर्स को प्लग करके तोड़ के अपने पास रख लिया, अगर वो 1 से 2 दिन के अंदर में अगर हम उनको मार्केट तक नहीं भेज पाए और वो 1 से 2 दिन तक मार्केट में नहीं बिक पाए, तो हमारे फ्लावर्स क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। जिस फार्मर्स ने उनको उगाया होगा उसको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए मार्केट का पास होना बहुत जरूरी है कि तुरंत हम तोड़े और उसको तुरंत हम मार्केट तक पहुंचा दें, जिससे कि वो सामान ना खराब हो। उसी तरीके से फ्रूट्स की बात हम करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं। तो अगर ये ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट सही समय पे मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। तो जब ये खराब हो जाएंगे तो मार्केट में इनका कोई प्राइस नहीं देगा, तो फार्मर ने जो पैसा लगा के खेती की है तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर उसी तरीके से पेरिशेबल आइटम्स में डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया। ये ऑल दीज आइटम्स आर द पेरिशेबल आइटम्स। ये भी एक पेरिशेबल आइटम्स है। अगर दूध जल्दी से जल्दी मार्केट पे नहीं पहुंचा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो जो फार्मर डेयरी पर काम कर रहे हैं, जो अपने मिल्स को बेच रहे हैं, तो जब उनको इसका पैसा नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा बेटा? उनको नुकसान होगा। तो इसलिए मार्केट का भी होना बहुत जरूरी है। I hope students all of you understand about the definition of the agriculture, the factors that influence the agriculture. Now from next video I am going to explain you about the types of agriculture. But one request to students, all of you complete your copy work, and from tomorrow you will get the question answers and the fill in the blanks of the chapter number 3 in the PDF from tomorrow. Okay.